गुंडा टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिमाचल सरकार हाय 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 हाय। ਜਿਹੜੀ 6 ਚੱਕੀ ਦੀ 250 ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ 500 600 ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਗਲ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਸੁੱਕੂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ अपना अलग स्टेट एक्ट पास करके एंटी टैक्स ला सकती है। हमने कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया। इस प्रकार की बात करना, प्यार और मिठास को कम करना हो। पंजाब वालों को जो बोलना है बोलने दो। आज ही कैबिनेट थी, इसमें पूरा रिव्यू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जाए या भगवान के पास जाए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एंटी टैक्स को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, अब वो दो राज्यों के बीच तनाव का बड़ा कारण बन चुका है। बंद करो, बंद करो, गुंडा टैक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिमाचल सरकार हाय 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 हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। 70 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 170 ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਕੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ 6 ਚੱਕੀ ਦੀ 250 ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ 500 600, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਗੇ? एक तरफ हिमाचल सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बाहरी वाहनों पर एंट्री फीस बढ़ाने का फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में इसका जोरदार विरोध देखने को मिला। कमर्शियल वाहनों को टारगेट किया गया। ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਗਲ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੁਪਈਏ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਟੂਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਤੇ ਰੇਤੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਸੁੱਕੂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਓ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 18 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾੜੇ वाली ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 17 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ खड़ा के गए। दूसरी तरफ इस मामले में हिमाचल कैबिनेट मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि कैबिनेट ने इस मामले पर कहा कि पंजाब सरकार की इच्छा है कि वो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे या फिर भगवान के पास। पंजाब वालों को जो बोलना है बोलने दो। आज ही कैबिनेट थी, इसमें पूरा रिव्यू हुआ है और जो 170 की गाड़ी थी वो 170 की हुई है। 130 रुपए से 170 रुपए 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एज पर एक्सल जो होता है
जितने टायर और एक्सल है एज पर एक्सल वेट के हिसाब से होता है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे फास्टैग जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था, फास्टैग से भी पेमेंट कटेगी। तो उसमें और कुछ गाड़ियों का रेट जो है वो कम भी हुआ है, 1-2 गाड़ियों का रेट भी कम हुआ है, वो लोग बता नहीं रहे हैं। सो इसका जो डिफरेंस जो अमाउंट है वो बिल्कुल आपके सामने प्रेस के सामने रखा जाएगा। आज कैबिनेट में थी, इसी में पूरी इसकी प्रेजेंटेशन। वो कह रहे नेशनल हाईवे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, तो उनकी अपनी मर्जी है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए या भगवान के पास जाए। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स बैरियर पॉलिसी 2026-27 के तहत एक बड़ा फैसला लिया था। इस नीति के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से हिमाचल में प्रवेश करने वाले बाकी राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों पर एंट्री फीस बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब इस फैसले में सिर्फ कार ही नहीं आती, बल्कि लगभग सभी कैटेगरी के वाहन शामिल किए गए हैं। प्राइवेट कार, जीप, वैन, LMV, लाइट मोटर व्हीकल 70 से 170 रुपए, लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी। मिनी बस, हल्के कमर्शियल वाहन करीब 320 तक फीस जो है वो तय की गई है। 3 एक्सेल ट्रक 600 तक शुल्क इनका दिया जाएगा। 7 या उससे ज्यादा एक्सेल वाले भारी वाहन 720 से 900 रुपए प्रतिदिन हो चुका है। हिमाचल में कुल 55 एंट्री टोल बैरियर है और इनमें से 6 मुख्य इंटरस्टेट एंट्री पॉइंट पर ये बढ़ी हुई फीस जो है वो लागू होनी थी। यहाँ से गुजरने वाले हर बाहरी वाहन को टैक्स देना अनिवार्य था। लेकिन इस फैसले का सबसे ज्यादा असर आम लोगों, पर्यटकों और ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ने वाला है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग जो रोजाना काम, व्यापार या निजी कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन गया है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि इससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी और सीधे तौर पर महंगाई पर असर पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831-90-831 पर। अब देखिए, हिमाचल के सोलन जिले और पंजाब बॉर्डर के पास सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर्स ने विरोध प्रदर्शन भी किया। नालागढ़ और कीरतपुर साहिब के पास धरना दिया गया, नारेबाजी हुई और चेतावनी दी गई कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो नेशनल हाईवे जाम कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ संगठनों ने भूख हड़ताल तक शुरू कर दी और ये भी कहा कि अगर इसे दोनों सरकारें नहीं दुरुस्त करेगी तो हम 1 तारीख को फिर से धरना देंगे। इस फैसले पर पंजाब सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया। पंजाब के नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल अपनी नीति वापस नहीं लेता तो पंजाब भी जवाबी एंट्री टैक्स लगाएगा, जो कि 100 से 200 नहीं बल्कि 1000 रुपए या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। ये मुद्दा पंजाब विधानसभा तक भी पहुंच गया, जहां विधायकों ने सरकार से हिमाचल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग की। वित्त मंत्री ने भी कहा कि इस मामले में कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਆ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਹੋਗੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈ AG ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਸ ਹੈ, ਟਿੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। अब ये मुद्दा पंजाब विधानसभा तक पहुंच गया, जहां विधायकों ने सरकार से हिमाचल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग की। सर GST ਦੇ ਅੰਦਰ वन नेशन वन टैक्स ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, तो GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਐਂਟੀ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ,
ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੋਲਸ ਐਕਟ 1975 ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ विधान सभा दे विच स्टेट दा एक्ट पास करके ये लाया। लगातार विरोध और तनाव को देखते हुए अब हिमाचल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई और पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की। सरकार ने अब इस फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना यह है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए सीधे फैसला बदलना आसान नहीं है, लेकिन अब रैशनलाइजेशन यानी दरों को संतुलित करने पर विचार किया जा रहा है। अंतिम फैसला विभाग की रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा है कि ये फैसला बिना सोचे समझे लिया गया था। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ बाहरी लोग बल्कि हिमाचल के लोगों को भी नुकसान होगा और राज्य की छवि जो है वो खराब होगी। मेरा आपके माध्यम से ये मेरी विनती है, दरखास्त है कि जो इंक्रीज हुई है वो उस इंक्रीज को रीजनेबल जो है, अगर आप इंक्रीज हो तो वो जो है हमें भी और हमारे साथ लगते जो राज्य हैं उन वहाँ रहने वाले लोगों को भी जो है वो रास आएगी। हमारे क्षेत्र में तो स्थिति ये है कि हमारे लोगों को अगर सीमेंट भी लेना है, क्योंकि हिमाचल में सीमेंट फॉर दैट मैटर कंपनीज हमारे हिमाचल में है जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, पर महंगा भी जो है हम लोगों को मिल रहा है, पंजाब में हमें सस्ता मिलता है। तो हम लोगों को सीमेंट की बोरी भी लेनी जानी हो तो वो भी जो है हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है हमारे लोगों को। और ये टैक्स ऐसे इस तरीके से इम्पोज करना, इसकी जो इंक्रीज है वो फेयर हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमने ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन के द्वारा भी ये प्रपोजल जो है सरकार के समक्ष रखी है। काइंडली आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इसे जो है तर्कसंगत करें और इसे फेयर इंक्रीज करने का काम करें। धन्यवाद। जो भी हिमाचल में एनवायरमेंट का माध्यम से हम शुल्क लगाते हैं, उसके टेंडरों की ऑक्शन होती है, टोल के टेंडरों की ऑक्शन होती है। उस टोल के टेंडरों की जो कीमत आती है उसके आधार पर जो रेट फिक्स किए जाते हैं, उसके आधार पर हमने जो टोल होता है वो कलेक्ट किया जाता है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर विधानसभा के सभा पटल पर बात कर रहे थे कि हिमाचल में पे नहीं मिल रही, हिमाचल में पेंशन नहीं मिल रही, हिमाचल में हम पंजाब पर टैक्स लगाएगा। पंजाब के लोगों को हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, पंजाब के लोग हमारे भाई है। जो भी हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान को कोई नागरिक आता है अभी से नहीं लगाए, ये पिछले 30 वर्षों से लगा हुआ है। हमने कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगाया। 30 वर्षों से टोल की नीलामी होती है। तो इस प्रकार की बात करना आपसी भाईचारे में प्यार और मिठास को कम करना हो। अब हिमाचल सरकार को इस एंट्री टैक्स विवाद का जल्द और संतुलित हल निकालना चाहिए। नेताओं को भी बयानबाजी से बचना होगा, क्योंकि असली असर आम लोगों पर पड़ता है, वरना राजनीति के इस खेल में पिसेगी सिर्फ जनता ही। अगली अपडेट आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना विचार इस खबर पर देना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।